Yes, good morning, students. Yesterday we have discussed the last topic of this chapter, the 1971 election and restoration of Congress. Today uh, we discuss the whole chapter and mostly, first of all, the passages of this chapter that the important passages. One is from the page 94, the passage, the defeat of official Congress candidate formalize a split in party. Write on the and note the question, what formalize the split of Congress? And second one is the mention two groups created after the split, and three, how did Indira Gandhi project the split? Question number one is the defeat of official Congress. कि मेन स्प्लिट कहाँ से हुई थी कि ऑफिशियल जो कांग्रेस था जो उसकी डिफीट से ही जो इनमें स्प्लिट हुई थी. एंड सेकंड वन इज़ द टू ग्रुप्स क्रिएटेड आफ्टर द स्प्लिट. कि टू ग्रुप्स कौन से थे जो कि वो उसके बाद बने थे. वन इज़ द कांग्रेस ओ एंड सेकंड वन इज़ द कांग्रेस आर. एंड थर्ड वन इज़ how did Indira Gandhi project the split? Indira Gandhi projected the split as an ideological divide between socialists and conservatives, between the pro-poor and the pro-rich. The first passage, and now the second passage is on the page number 96. The passage is, the new Congress has something that it big opponent lack. It is an issue as an agenda and a positive slogan. Yes, the question is, which Congress is being referred to as a new Congress? न्यू कांग्रेस किसको बोला गया था? दैट इज द कांग्रेस ऑफ, दैट इज द ग्रुप ऑफ इंदिरा गांधी. एंड हाईलाइट एनी टू स्टेप्स टेकन बाय इंदिरा गांधी टू रिमूव द पॉवर्टी. कि इंदिरा गांधी ने मेन किस पे फोकस करा था? दैट शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज एंड abolition of princely privileges. And next is how far it is justified to call the opposition alliance and grand alliance. कि इसको ग्रैंड अलायंस का कैसे जो कहा गया? बिकॉज इनका एक ही पर्पज़ था, दैट वाज टू इंदिरा गांधी के पोजीशंस को वर्स करना और इंदिरा हटाओ, ये प्रोग्राम था. इट कम टू एन एग्जिस्टेंट टू मेक मैटर वर्स फॉर इंदिरा. एंड थर्ड पैसेज इज नाउ page number 99, that is what does it mean the Congress was restored? Here is the question, had Indira Gandhi revived Congress? The question number one is the Congress system Indira Gandhi was done not a revival of foreign Congress parties. In many ways she had reinvented the party. This is the answer of the question number one. And next is, how did Indira Gandhi restore the Congress system? And there is the question answer, Indira Gandhi restored the Congress system by changing the nature of the Congress system itself. कि इसमें जो इंदिरा गांधी ने पूरा टोटली नेचर ही उसको चेंज कर दी इससे को रेस्टोर करने के लिए. एंड नेक्स्ट इज, व्हाई डिड कांग्रेस नॉट हैव ऑल काइंड ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट? कांग्रेस में ओपिनियन और इंटरेस्ट क्यों नहीं अकोमोडेट कर पाई? बिकॉज इट डिपेंडेड मोर ऑन द सोशल ग्रुप्स, द पुअर, द वुमेन्स, द दलित, आदिवासीज एंड द माइनॉरिटीज. So student, these are the three passages. And next, here is some pictures of this chapter. One is the picture from the page number 97, that is the midterm race जो है between the syndicates and इंदिरा गांधीज. तो इसमें ये था कि सिंडिकेट्स को ये पूरा था कि वो इंदिरा गांधी इस इलेक्शंस में नहीं जीतेगी, दैट इज़ द minority और they were in the majority. पर यहाँ पर सब उल्टा हुआ कि द ग्रैंड विन कार्ड यहाँ पर आउटकम फॉर 97 रेस ऑन द ग्राउंड रेस आर देन लीडिंग ऑपोजिशन फिगर्स. इसमें क्या था कि सब जगह जो था मोस्टली इंदिरा गांधी ही इसमें जीती थी. और जो है
ये सारे इस तरफ जो दिखाए गए हैं उनको ये नहीं लग रहा था, कि उनको ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे जो इंदिरा गांधी को इतनी बड़ी सक्सेस जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट इज, here is the picture on 93 page, 93 page, that is the VV गिरी को ये कब था, that is the election of president. VV गिरी won the election, that is the picture of the VV गिरी. And now these are the questions. First, challenge to political successions, and here are some things to remember. One is the non-congressions. Non-congressions क्या था, that is the anti-congress front. जो इंदिरा के खिलाफ जो था नॉन कांग्रेस थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था. एंड व्हाट इज कांग्रेस? हो दैट इज द ग्रुप ऑफ द पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस लीडर्स. They made the group, that is the Congress O, and the Congress R is the Congress group of Indira Gandhi. And what is the Grand Alliance? Grand Alliance क्या था? That is a group of mostly the parties, SSP, PSPs, Bharatiya Janasangh, Swatantra parties. All these parties came under one umbrella, and that make a Grand Alliance against Indira Gandhi's. And what was the syndicate? Syndicate was the old peoples, the people of the powerful and influential leaders. These are the syndicates. Yes, the result of which election were called the political earthquakes. किस elections को जो है political earthquake जो है का नाम दिया गया था? That is the election of the fourth general election. उसमें क्या था? There was the dominance of the Congress was over. After independence जो कांग्रेस की dominance थी वो इस elections में ख़त्म हो गई थी, और कांग्रेस को इतनी जो है सीट्स जो नहीं मिली थी, इसलिए इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक का नाम दिया गया था. एंड हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर? कांग्रेस ओ वाज रिप्रेजेंटेड बाय के कामराज, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, एंड कांग्रेस आर वाज रिप्रेजेंटेड बाय द इंदिरा गांधी. नेक्स्ट इज जो है, इन 1966 हु कंटेस्टेड अगेंस्ट इंदिरा गांधी फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? कि 1966 में आफ्टर नेहरूज डेथ लाल बहादुर शास्त्री became the prime ministers, and after लाल बहादुर शास्त्री death there is a competition between Indira Gandhi and Morarji Desai. And next is, what challenges were faced by India between 1964 to 1966 during the prime ministers? One is the Indochina in 1962, and second one is the Indo-Pak war, and next is failed monsoons, and also drought, serious drought. These are the serious conditions that cause the food crisis. And now what is the challenge of the political successions? And this is the challenge of the political succession is कि आफ्टर नेहरूज किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि जो है यहाँ पर एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो बन पाएगा, इसलिए जो है पर उसके बाद जो शास्त्री जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने जो था बहुत ही अच्छे तरह से ये सारे चैलेंजेस को करा, और उन्होंने दे हैड गिवन द स्लोगन दैट इज़ द जय जवान जय किसान. एंड ऑन शास्त्री प्राइम मिनिस्टर and on the, after his death in 1966 फिर जो है कांग्रेस सामने एक प्रॉब्लम्स आ गई कि अब किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे. देन इंदिरा गांधी became the prime minister. Here is the competition between Indira Gandhi and Morarji Desai, and then all the leaders are in the favor of Indira Gandhi, and then Indira Gandhi became the prime ministers. And after that फोर्थ जनरल इलेक्शन इन 1967, फोर्थ जनरल इलेक्शंस जो है 1967 में, इसमें उसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी देश में, दैट वर द फेलियर ऑफ मानसून था, इकोनॉमिक क्राइसिस थे,
that was the war with China and war with Pakistan, all these things. And one main first decision of Indira Gandhi to devalue the Indian rupees under what was seen to be pressures from the US से उसको pressures हुआ डॉलर के मुकाबले उन्होंने 5 रुपीज़ उसकी वैल्यूज़ कर दी, बिफोर जो है 70 डीवैल्यू कर दिए, और इसकी वजह से जो है इंदिरा की पोजीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और जो है इसी वजह से बहुत सारी बंद हड़ताल जो है यहाँ पर हुई, और जो है गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ये जो प्रोटेस्ट है लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, बट नो इट वाज द पब्लिक बिटनेस एंड इट वाज पब्लिक अनरेस्ट था, जो पॉपुलर अनरेस्ट थी, जो लोगों की डिमांड्स थी वो नहीं मान रही थी, फूड क्राइसिस हो रहा था, और जो चीज़ें थी कमोडिटीज़ जो थी उन बहुत महंगी हो रही थी, इसकी वजह से जो था ये जो फूड क्राइसिस हुआ। देन द नॉन कांग्रेशंस, फिर इसके बाद जो है मोस्टली जो है राम मनोहर लोहिया के अंडर जो है एक नॉन कांग्रेशंस ग्रुप बना, जिनका मेन पर्पस यही था कि जो है कांग्रेस जो है इन डेमोक्रेटिक तरीके से जो है कंट्री को सक्सेसफुल करने में कामयाब नहीं रही है, इसलिए उन्होंने इसको हटा के वो पार्टीज जो थे उन्होंने कहा कि हम एक अलग ग्रुप बना के इसके खिलाफ जो है इस कांग्रेस को हटाएंगे, और इसलिए जो है इसी को जो है फोर्थ जनरल इलेक्शन को इसीलिए पॉलिटिकल अर्थक्वेक दिया गया, क्योंकि इसमें जो था कांग्रेस को सीट्स बहुत कम पड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने मेजॉरिटी बना ली। एंड द मेन लीडर ऑफ देयर मेन लीडर्स जो कामराज इन तमिलनाडु एंड पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के.वी. साय इन बिहार, all these lost their seats in the four general elections. Then in some areas they make a coalitions government, वहाँ से ही जो थी 4 जनरल इलेक्शन से ही coalitions government स्टार्ट हुई, मिली जुली सरकार बनने लगी, और इसके बाद फिर जो है डिफेक्शंस जो था वो ये था कि वहाँ से जो था एक्सप्रेशंस आयाराम एंड गयाराम पॉपुलर हुआ, जिसमें कि एक हरियाणा से एमएलएस जो गयालाल था उसने थ्राइस इन अ फोर्टनाइट जो है एक से पार्टी से दूसरी और फिर दूसरे से इसमें जो था ये आया, इसकी वजह से जो था इसी वजह से ये जो था आयाराम गयाराम जो है ये एक्सप्रेशंस पॉपुलर हुआ। उसके बाद जो है स्प्लिट इन कांग्रेस हो गया, जो है इसमें इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट्स जो थे इसमें शामिल होंगे, और इंडिया वर्सेस सिंडिकेट्स 2 ग्रुप्स बन गए। ऑल द नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेशंस पार्टीज केम अंडर द अम्ब्रेलाज ऑफ द सिंडिकेट्स, and the only the one alliance is between the Indira Gandhi's with the CPI Communist Party, and then came the presidential elections। मेन स्प्लिट जो थी इनकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन 1969 से स्टार्ट हुई, जहाँ पर कि इंदिरा गांधी जो था जो सीनियर लीडर्स थे वो एन संजीवा रेड्डी को इसके लिए नॉमिनेट करना चाहते थे प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए, बट एन संजीवा रेड्डी वाज मोस्ट द ओपोनेंट ऑफ द इंदिरा गांधी, एंड इंदिरा गांधी जो थी वो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट वी गिरी थे उन्हीं को जो नॉमिनेट करना चाहती थी, इसलिए जो है इसमें इन्होंने जो सिंडिकेट्स ने अपने जितने भी लीडर्स थे उनको ये कहा कि ऑल दे गिव वोट इन द फेवर ऑफ द एन संजीवा रेड्डी, बट इसमें इंदिरा गांधी ने एक जो है उसने ओपनली कॉल फॉर ए कॉन्साइंस वोट, उसमें जिसका मतलब था कि सब MPs एंड MLAs वर फ्री टू वोट द वे दे वांटेड, कि वो फ्री हैं किसी को भी वोट देने के लिए। इसी वजह से जो है मोस्टली और जो है इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत ही पॉपुलर हो चुकी थी उस समय, इसलिए मोस्टली जो वोट्स थे इन द फेवर ऑफ द वी गिरी, एंड वी गिरी वन द इलेक्शन। इसके बाद जो है डिफीट ऑफ द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट के बाद ही ये जो स्प्लिट था, इन्होंने अपनी अलग पार्टी, उनको ये था कि इसको इंदिरा गांधी को हटाकर हम जो है आएंगे, क्योंकि ये पार्टीज़ की कोई भी वैल्यू जो है नहीं है, माइनॉरिटी में है, और हम एक जो है एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में उभर आएंगे। इसकी वजह से ये जो है 1970 इलेक्शंस हुआ, और उसमें लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना 10 पॉइंट प्रोग्राम से कहा, जिसमें कि उसने मेन स्ट्रेटेजी जो है उन सोशल ग्रुप्स वीक
वुमेंस, आदिवासीज एंड माइनॉरिटीज़ के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता, तो इसकी वजह से मोस्टली जो है लोगों ने इसकी सपोर्ट में वोट दी और इंदिरा गांधी जो है वन द इलेक्शंस। और इसकी जो इसके जितने भी सिंडिकेट्स थे और कांग्रेस वो थे उनको फेलियर का सामना करना पड़ा, और इस तरह से जो है लोकसभा इलेक्शंस जो है इसमें सीपीआई और लोकसभा इलेक्शंस में इन्होंने 375 जो सीट्स थी वो जीत ली, और उसने जो कांग्रेस थी उसने अपने आप को इंदिरा गांधी एस्टेब्लिश द क्लेम टू बी अ रियल कांग्रेस, इसमें इसने अपने आप को रियल कांग्रेस की तरह ही एस्टेब्लिश किया। और इससे ऐसी जो है इसलिए जो है बिकॉज इंदिरा जो थी वो इसको सक्सेस का मेन कारण ये था कि इसने ज़्यादातर जो गरीब लोग थे, जो पुअर थे, देर वॉज ए लॉट ऑफ गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जो अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा गैप था, और उसको ख़त्म करने के लिए उसने प्रीवी पर्सेस को अबॉलिश किया, बिकॉज द प्रीवी पर्सेस वर द प्रिविलेज गिवन टू द फॉर्मर प्रिंसेस, उसको ख़त्म किया। उसने इसकी वजह से जो है उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और इसके अलावा जो बांग्लादेश था, ईस्ट पाकिस्तान जो है, बांग्लादेश की वजह से भी इसके बहुत पॉपुलैरिटी मिली। और इस तरह से जो है इंदिरा गांधी जो है सक्सेसफुल हुई, पर बट दिस पार्टी वाज नॉट सक्सेसफुल, दिस वाज द सक्सेस ऑफ द इंदिरा गांधी बिकॉज ही वाज अ वेरी शी वाज द वेरी पावरफुल लीडर्स। और ऐसे जो है इस तरह से, पर इसमें भी वो कहते हैं कि इस इंदिरा गांधी जब फुली इसको जो इकोनॉमिक बैलेंस को करने में सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि मोस्टली जो है उसने डिपेंड ऑन द सोशल ग्रुप पर डिपेंड्स रही, दैट वर द पुअर, वुमेन, दलित, आदिवासी एंड माइनॉरिटीज़। एंड इसलिए जो है इसलिए ज़्यादातर ध्यान जो था दूसरे उस पर नहीं दिया, इसलिए पूरी तरह से ये सक्सेसफुल नहीं हुई। थैंक यू। हो गया टाइम।